So hey guys, welcome back to another video in which we will talk about the societies of Jamia. After taking admission in a particular university or a college, we always look around and we see people being engaged in different kind of activities. Some are into sports, some are into music, some are into drama, and some are part of different societies in the college itself. So हमारा भी मन करता है कि हम भी कोई ना कोई सोसाइटी ज्वाइन करें, कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करें, क्योंकि आसपास के जितने भी हमारे लोग दिखते हैं, हमारे कोलीग्स ही हो गए, क्लासमेट्स हो गए, दे ऑल्सो स्टार्ट ज्वाइनिंग डिफरेंट सोसाइटीज और काफ़ी नए नए एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट्स वाई वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ जामिया. एज there are n number of societies and clubs in Jamia, we will talk about each and every one of them, and according to you and your interest you should join any society that's out there. So first of all तो बात यह है कि guys, सोसाइटी ज्वाइन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम सोसाइटी क्यों ज्वाइन करें, क्या फ़ायदा है हमारा उसमें, एंड इतने सारे लोग क्यों ज्वाइन करते हैं. हर साल अलग अलग सोसाइटी अलग अलग टाइम में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स लेके आती है और बहुत से बच्चे होते हैं जो इनका फॉर्म फिल करते हैं. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण लोग सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं, क्लब्स ज्वाइन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज. सी सोसाइटीज आर फिल्ड विथ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड they are a platform where you can connect with like-minded people, and from them you can grow different kind of friendships, and you can make them professional relationships in future as well. Next thing is skill development. So as you are in college right now, you guys will be looking for developing your skills. So for that you have to look into yourself and see what are you good at actually. Maybe you are good in debating, or you are good at quiz, or you may be good at singing or different kind of stuff. Like you can be a good content writer, maybe you can handle events, or you can handle different social media accounts. So for that you can join a society and explore that particular skill of yours in a very large scale. Next up is personal growth. See, societies and clubs play a very big role in developing your communication skill, your leadership skills, and mostly your confidence. So when you join a society, you indulge in different activities and you end up with a better confidence levels, and that's why you should explore yourself. Maybe you would be a better leader at some point, so leadership skills भी develop करना काफी जरूरी है. Next up is CV enhancement. Okay, so you are coming into a college, and after 3 years or 4 years you will be leaving that college, and the next thing is you would be applying for different jobs or different internships. So for that you need a strong CV, and if you aren't doing anything in college to enhance your CV, like joining societies, learning new skills, then that would be not so good for you, because people or recruiters in different jobs or internship will be looking for that experience which you get from working with a society or a club, so that they can use that skill of yours for their own firm. And one point is exploration of interest. See guys, many of us come into college without knowing what we are interested in, and we have to explore that as well, because without exploring what you like isn't gonna help you in future. So societies give you an edge on that, so you can meet new people, you can explore new things, and then you will grow new interest in certain things which you weren't aware of. So that has to be one point, because मेरे को भी मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट नहीं पता थे, and after joining societies you get that in you. So enough of this. So let's talk about societies now. There are about 25 or more societies in Jamia, and about the clubs जिसमें आप लोग ने maybe forms भरे थे. I would like to say कि they aren't that much active at all. I have met people who had applied for or who are in those clubs, and they are complaining about the activities or the activeness of those clubs, because they are really inactive right now. And that's why I would suggest go for different societies, because they are the most active right now, and they would help you to grow rather than joining those clubs and all. So first of all, I would like to talk about my own society, which our friend circle started in 2021, and that's Aero Amos JMI, which is actually an independent student run aeronautics society, which is first of its kind in Jamia. So we started Aero Amos JMI with a common goal of spreading the word of
ऑफ एविएशन। वी नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एविएशन के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट करियर ऑप्शंस दे वांट टू एक्सप्लोर देम। वी वांटेड टू शेयर द नॉलेज वी हैव बिकॉज वी वेर in aeronautics department. So aeronautics is not that kind of field which only some are authorized to join. Aviation से related जितना भी हमें knowledge था, we wanted that to propagate towards everyone inside or outside Jamia. So we started it and we got a great response from the audience, and we conducted different events as well. We had quizzes running every week. We have had a webinar with a cadet pilot as well. Actually we were active on social media moreover because there were constraints because of COVID at that time. So because of COVID we weren't able to get any ground presence, but in social media we had a decent amount of following, and to be honest, for a new society that was quite massive at that time. So if you are interested in aviation or aeronautics in particular, you can surely join AeroAmers, and that would be quite beneficial for you. Next up we will be talking about TJR, जामिया रिव्यू। अगर मैं बात करूँ जामिया रिव्यू की, दे आर ए स्टूडेंट रन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज, इफ आई वुड से। दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, इफ आई हैव टू बी फेयर, बिकॉज आई हैव सीन देयर वर्क, एंड इवन इन द कोविड years they were bringing new stuffs, they were bringing updates and achievements that Jamia had in those times, or important updates which you and I would like to have. And I would say they are moreover a media partner of most societies in Jamia or most events, and they have done a quite good job in that regard as well. Next up we have Enactus JMI. Enactus JMI has been doing groundwork for a lot of time now. इनका जो एक project है, Project Srimati, that has got many recognition around the world. Even के जो Enactus Olympics होते हैं वहाँ पे भी Enactus JMI को इस प्रोजेक्ट के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था, अवार्ड मिला था। स्पेशली दे हैव वन MSME अवार्ड रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उनका एक फेस्ट होता है सी फेस्ट, विच वाज क्वाइट गुड लास्ट ईयर। इस बार मे बी और अच्छा होगा। दे आर क्वाइट एक्टिव एंड ऑन ग्राउंड दे हैव बीन वर्किंग रेगुलरसली, आई वुड से। लोग काफ़ी जगह जगह जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन दैट रिगार्ड। सो हैट्स ऑफ Enactus JMI. Next up we have GAEE JMI, based on economics department. They are running this society, and they are promoting entrepreneurship and economic knowledge, financial literacy around students in the campus, and they have also done quite well. They have had different events last year. इनका फेस्ट जो होता है, I guess that's Ecocracy, and that was quite well. और इनके और कुछ इवेंट्स होते हैं, पिराना, स्टार रूम वगैरह, I guess इनके लास्ट ईयर हुए थे, and those were quite good as well. So you can check out if you are from economics background or if you are interested in entrepreneurship. Next up we have Socios JMI. सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का ही ये सोसाइटी है, एंड इनका भी काफ़ी ग्राउंड वर्क था लास्ट ईयर। लोग ने काफ़ी काम किया है, इनके सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। दे कंडक्टेड अ फोटो वॉक लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, मेरे फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन किया था, तो मुझे पता है कि अच्छे खासे पार्टिसिपेशन थे उसमें। अगर आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एनी सोसाइटी, यू कैन चेक देम आउट एज वेल। नेक्स्ट अप वी हैव साइक JMI. साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का ये सोसाइटी है, एंड दे हैव डन क्वाइट वेल। ये लोग का भी स्टार्ट हमारे अराउंड ही हुआ था। दे वेर क्वाइट डूइंग वेल इन सोशल मीडिया, एंड इनके जो पोस्ट वगैरह थे काफ़ी अच्छे थे। हमने स्टार्ट किया था, वी वर ऑलवेज लुकिंग अप टू देम बिकॉज दे हैड वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस एट दैट टाइम। कहूँगा कि साइकोलॉजी के वर्ड्स प्रमोट करने में इन्होंने काफ़ी काम किया। इन्होंने काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी किए अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के साथ, और मे बी आगे चल के और अच्छे इवेंट्स करते रहेंगे ये लोग। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, यू कैन चेक देम आउट एज वेल। नेक्स्ट अप इज़ जियोकोस JMI. जियोग्राफी डिपार्टमेंट का ये सोसाइटी है, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट डिफरेंट जियोग्राफिकल थिंग्स और जियोग्राफिकल स्टफ्स। इनके भी
काफ़ी अच्छे ग्राउंड वर्क है, NGOs के साथ मिलके ये लोग भी करते हैं ग्राउंड वर्क, एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट सोशल मीडिया प्रेजेंस, और ये लोग क्विज वगैरह भी कराते रहते हैं, तो मेक श्योर यू चेक देम आउट एज वेल। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वाले जितने भी है ज्वाइन तो कर सकते हो, बाकी डिपार्टमेंट वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता है सोसाइटीज ज्वाइन करने का। नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्मृति JMI। दे आर नॉट अ सोसाइटी, दे आर मलयाली स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। जितने भी मलयाली स्टूडेंट्स हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन्हें मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट फ्रेटर्निटीज़ इन JMI, और ये लोग काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स कराते रहते हैं। इनका मुजिरिस केरला फेस्टिवल वाज ग्रेट, और पूरे JMI ने देखा था कितना अच्छा गया था, एंड टाइम टू टाइम दे आर सेलिब्रेटिंग सर्टेन फेस्टिवल एंड दे आर promoting their culture in the national capital. Now most of us know many things about Kerala and its culture because of Smriti JMI. तो Kerala students को तो join करना ही चाहिए इसमें। Next up is Girl Up JMI. Actually Girl Up एक organization है। Girl Up JMI is a part of it, and they are trying to build up gender equality. They are trying to stop the gender biasness, and ground में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, and आप लोग चेक आउट कर सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट अप वी हैव जामिया क्वीर कलेक्टिव। ये जामिया के जो क्वीर कम्युनिटी है उन लोग का सोसाइटी या ग्रुप मान लीजिए। दे हैव बीन क्वाइट इनएक्टिव रिसेंटली, बट आप लोग 2022 तक इनके काम देख सकते हैं, एंड दे हैव अ गुड फॉलोइंग इन सोशल मीडिया, एंड अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं तो नो डाउट यू कैन ज्वाइन। नेक्स्ट अप इज जामिया गेमिंग कम्युनिटी JGC। तो जितने भी ई स्पोर्ट्स फैंस है या ई स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, नो डाउट यू कैन ज्वाइन जामिया गेमिंग कम्युनिटी, बिकॉज लोग काफ़ी हद तक अच्छा इवेंट्स कराते रहते हैं, इनके टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं जहाँ पे आप लोग अच्छे खासे ट्रॉफीज वगैरह भी जीत सकते हैं, एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, बिकॉज काफ़ी इनके इवेंट्स प्लान्ड है आई गेस, एंड होपफुली इन द कमिंग डेज ये लोग और भी टूर्नामेंट्स कराएंगे जस्ट लाइक लास्ट ईयर, जहाँ पे फीफा वगैरह इन्होंने खिलाया था, एंड बहुत ही एक लार्ज ऑडियंस उन दिनों थी। नेक्स्ट वी हैव ECEL, एंटरप्रेन्योरशिप सेल JMI। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये लोग क्या करते हैं, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एज वेल। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, नो डाउट यू कैन ज्वाइन, बिकॉज यू विल गेट लाइक माइंडेड पीपल आउट देयर, एंड मोस्टली आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सही से काम करते हैं तो इन फ्यूचर आफ्टर कॉलेज यू विल गेट सम पीपल विच यू कैन वर्क विथ फॉर योर स्टार्टअप और योर फ्यूचर गोल्स एज वेल, एंड दे हैव अ great fest exuberance which was quite good last year। काफ़ी सारी जनता थी उस फेस्टिवल में। सैडली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, वरना आपको ब्लॉग देखने मिलता उसका, लेकिन दैट वाज अ वेरी बिग इवेंट, एंड इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के आसपास हुआ था, तो दे वर फिल्ड विथ स्टूडेंट्स ऑल ओवर। नेक्स्ट अप वी हैव JDSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज, और हर कॉलेज में JDSC का एक ना एक यूनिट तो है ही। If you are looking forward to being a developer, you should join this society, because that would be helpful for you, and you will meet people who are also interested in developing and कोडिंग रिलेटेड। जितने भी लोग हैं जो कोडिंग करते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर देम। नेक्स्ट अप इस जामिया UPSC सोसाइटी। जो लोग भी UPSC करना चाहते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में रहना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, तो वो लोग कर सकते हैं इसको, एंड दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम। सो नेक्स्ट अप वी हैव SAE। ये जामिया के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सोसाइटी है। SAE एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव डन क्वाइट वेल इन दिस ईयर्स, एंड इनका जो इवेंट है वो होता है सेलेस्टा, भी बहुत अच्छा गया था। ये लोग टाइम टू टाइम सेशंस कराते रहते हैं, सेमिनार्स वगैरह इवेंट्स इनके होते ही रहते हैं, और जितने भी इंजीनियरिंग बेस्ड सोसाइटीज़ है वो लोग मैक्सिमम टाइम्स कुछ ना कुछ तो कराते रहते हैं, और इंजीनियरिंग ऑडिटोरियम में कोई ना कोई इनके इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ रिलेटेड इवेंट होते ही रहते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आप SAE को चेक कर सकते हैं। साथ में इनके साथ ही आता है और एक सोसाइटी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही है, वो है ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है इसका फॉर्म आई गेस, एंड ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है,
काफ़ी अलग अलग यूनिट्स है अलग अलग कॉलेजेस में, एंड इनका भी सेम ही होता है सेलेस्टा। ये SAE और ASM इन्हें मिल के लास्ट टाइम किया था, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल बिकॉज मैंने इनके काफ़ी सारे इवेंट्स देखे हैं। ये लोग रिसेंटली शायद से चेन्नई भी गए थे ड्रोन कॉम्पिटिशन में, एंड दे डिड वन समथिंग। नेक्स्ट अप इज़ IEEE। इनका जो सोसाइटी है ये एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, एंड दे आर ऑल्सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग। तो जितने भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो भी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट कोडिंग है, तो वो लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। ये लोग डिफरेंट इवेंट्स कराते रहते हैं कोडिंग या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। नेक्स्ट अप इज 180DC। 180DC इज NGO और 180DC JMI जो है वो इनका JMI यूनिट है। लोग वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में है इनका 180DC का नेटवर्क, और ये एक्चुअली कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग NGOs एंड जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है उनको, एंड दे हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल। नेक्स्ट अप वी हैव क्विजेंटो मतलब जामिया का ऑफिशियल क्विज क्लब, जो कि क्वाइट एक्टिव है। इसके रिलेटेड ये लोग काफ़ी इवेंट्स कराते रहते हैं। इनमें से 2 प्रीमियर इनके इवेंट्स है। एक है मेम्ब्रेन एक्चुअली इनका जो है मेंबरशिप ड्राइव होता है। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको मेम्ब्रेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप इनके मेंबर हो सकते हैं। और ये लोग आगाज़ इनका और एक क्विज इवेंट है जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस डे के अराउंड ही हुआ था इस टाइम। इट वाज अ बिग इवेंट, क्योंकि आप लोग ने इसका पोस्टर्स वगैरह भी देखे होंगे अगर आप कैंपस में है तो। क्विजेंटो ही एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मैंने अप्लाई किया था, और किसी सोसाइटीज़ में मैंने आज तक अप्लाई नहीं किया। मैंने पर्टिकुलरली क्विजेंटो के लिए अप्लाई किया था। सैडली वो नहीं हो पाया, क्योंकि जब इनका मेम्ब्रेन आया था तब मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और उस टाइम पे नेटवर्क वगैरह की इशू हो रहा था, तो आई डिडंट गॉट द चांस टू जॉइन देम। होपफुली अगर हो जाता तो सही रहता है यार। आई ऑलवेज हैड द इंटरेस्ट इन क्विजिंग। तो सेट लाइफ गाइस। एंड नेक्स्ट अप वी हैव CDF। ये NGO है, एंड आई गेस इनका जो एब्रीविएशन है गोस लाइक ड्रीम्स फाउंडेशन। रिसेंटली आई हैव बीन सीन देम क्वाइट लॉट बिकॉज दे हैव बीन क्वाइट इनएक्टिव एक्चुअली। तो देख लेना आप लोग अगर इनके साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है। इनके पेज वगैरह देख लो, लिंक्डइन देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, मे बी दे आर एक्टिव, मैसेज करके देख लो। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम वगैरह में इनके पोस्ट वगैरह नहीं देखे। नेक्स्ट अप वी हैव ए क्वाइट इंटरेस्टिंग सोसाइटी, TRS रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ जामिया। तो जितने भी लोग हैं जो रोबोटिक्स वगैरह में इंटरेस्टेड है, AI वगैरह में इंटरेस्टेड है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग फ्यूचरिस्टिक, सो ऑलवेज पीपल हैव अ आई ऑन देम। इनका कुछ इवेंट हुआ था टोरी करके, आई गेस TORI, सो दैट वाज क्वाइट वेल। और ये लोग का इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। यू विल ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट थिंग्स, और इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इंडल्ज इन इवेंट मैनेजिंग एज वेल। तो नो डाउट आप लोग जो एक्टिव सोसाइटीज़ है जो इवेंट्स वगैरह कराती रहती है उनके साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट जो है वो आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट अप वी हैव FICJMI, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट क्लब। ये लोग जो है ये लोग फाइनेंस लिटरेसी एंड इन्वेस्टमेंट नॉलेज को प्रमोट करते हैं। जितना भी स्टूडेंट्स है वो लोग को अब अवेयर कराते हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है। सब के बारे में ये लोग बाहर जाके भी कुछ ना कुछ सेशंस कराते हैं। क्वाइट न्यू है एक्चुअली, काफ़ी कम टाइम में इन्होंने अच्छा खासा काम ज़रूर किया है। तो उसके बाद आता है गाइस मैथ्स गीक ने भी अराउंड हमारे टाइम में ही इनका स्टार्ट हुआ है, एंड दे हैव ऑल्सो बीन क्वाइट एक्टिव। इनकी अच्छे खासी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स तक हो चुके हैं। इनके जो फाउंडर्स थे वो हमारे साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रखते थे, एंड वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन एनी रिगार्ड दैट वी कुड, बिकॉज बहुत सारे सोसाइटीज़ उसी टाइम स्टार्ट हुए थे हमारे साथ, एंड और भी सोसाइटीज़ जिनके साथ हमने काम किया और जिनका पोस्ट शेयर किए, जिनके रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में हमने काफ़ी प्रमोट किया। दे ऑल्सो डिड द सेम फॉर अस एज वेल, एंड मैथ्स गीक भी उनमें से एक है। एंड लास्ट ईयर या इस साल के स्टार्टिंग में आई गेस इन्होंने चेस इवेंट भी कराया था जिसमें अच्छी खासी पार्टिसिपेशन हुई थी, हमारे लोग भी थे उसमें, एंड दे डिड इट क्वाइट वेल। सो इट्स ऑफ टू देम, एंड होपफुली दे विल ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट्स इन द कमिंग टाइम्स एज वेल। नेक्स्ट इज अखलीमा JMI।
एक्चुअली ये लोग फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं एंड पीपल हु आर ये लोग वुमेंस राइट्स या जो जेंडर बायसनेस है या इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, दे आर ट्राइंग टू कट द गैप ऑन दैट। एंड अगर आप लोग फेमिनिज्म के बिलीवर है तो आप लोग नो डाउट क्लीमा को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वी हैव मासियत भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ही सोसाइटी है। ये लोग भी फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह रिलेटेड पोस्ट करते हैं। तो इनके काफ़ी सारे पोस्ट हैं, इनके बजट के ऊपर भी पोस्ट देखे हैं मैंने। ये लोग अच्छा खासा काम करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी ऑब्वियसली एक बड़ा टॉपिक है एंड एवरीवन हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सम स्टेज। सो इसके लिए यू शुड सपोर्ट देम। उनको भी इंटरेस्टेड है मासियत में तो ज्वाइन कर सकता है और यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। एक बात यह है गाइस कि वो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ के चल रहे हैं। TJR का भी चल रहा है फ़िलहाल तक, तो जब ये वीडियो बनाना हो तब तक तो चल रहा है, जब आएगा तब मे भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ट्राई करो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का ट्राई करो। हर सोसाइटी के पेज में जाओ, उनको देखो, उनके एम्स को समझो, उनका विज़न को समझो एंड देन चूज़ कि आप कौन से सोसाइटीज़ में अपने आप को फिट इन देखते हैं, कौन से न्यू फील्ड्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी देखिए। उनके पास आपको अलग अलग रोल्स मिल जाएंगे। इनके पास आपको सोशल मीडिया में आने का मौका मिलेगा, इनके पास डिज़ाइनिंग टीम में आने का मौका मिलेगा, आपको फोटोग्राफी वगैरह का मौका मिलेगा, मार्केटिंग का मौका मिलेगा, PR, HR, या आप मान लीजिए और भी है, कंटेंट है, रिसर्च है, और भी काफ़ी सारे रोल्स है। यू कैन एक्सप्लोर मेनी ऑफ देम। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रोल्स है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो नो डाउट यू कैन डू दैट। चेकआउट कीजिए कि कौन सा सोसाइटी आपके लिए बेस्ट रहेगा, को देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। आई वुड से अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग पर्क्स मिलते हैं एंड आफ्टर वर्किंग विद देम यू विल गेट क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आप ये भी क्या पता अगर आप कंटिन्यू करते हैं, मे बी यू विल गेट अ बिगर रोल। क्या पता उस ऑर्गेनाइजेशन के आप फ्यूचर में जाके किसी डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हैं, पता आप वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। नो डाउट अपने आप को एक्सप्लोर करो और सोसाइटीज़ में भी जाओ, बातचीत करो लोगों से, जानो कि क्या है, इनके एम्स क्या है। और इफ़ यू टॉक टू द members of those society, you will get to know about the society as well. Think of that. And if you join any society, it would be you who will be benefited by that. Rest is in your hands, guys. We'll give links of their social media handles in the description. Go out and check each and every one of them. Decide whether which society fits for you, and go on, text them, contact them, fill the form of that particular society and enjoy, explore, learn and grow. So that was all for the video, guys. If you liked the video, please make sure you drop a like. If you have any questions or any queries, drop a comment. Make sure you subscribe the channel. Thanks for watching the video, guys. Jai Hind, Jai Ahom.